توجہ اے بدماشیاں سٹیجاں تے نہیں چلن گیاں یہ اہل سنت دا سٹیج ہے اور ہن میں سن لیا کئی پیر کہندے ہم بریلوی نہیں ہیں میں کہا واقعی ٹھیک ہے تسی بریلوی ہے ہی نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کیوں نہیں بنتے بھلا اس واسطے کہ اعلیٰ حضرت نچن ٹپن نہیں دیتے تے جڑے ذیشان روکھڑی نوں سڑن او بریلوی اعلیٰ حضرت تے لمحہ پا لیندے نے نا بندے پانچ چار بندے رنگ پان کے خیر سے آئے یہ کیا مطلب ایک منٹ دیکھو مسلک ہمارا سنی ہے لیکن بریلویت میری غیرت کا نام ہے اب یہ کہا جائے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں تو ہم چشتی ہیں نظامی یار سارا میں اپنے آپ کو میں بریلوی نہیں میں اتاری ہوں تو بریلوی لفظ میں کون سی غلطی ہے جو اتاری میں نہیں ہے یا چشتی میں نہیں ہے یا گولوی میں نہیں ہے میں نے وہ شان بھی تو دسی جائے نا کیا خامی ہے اس لفظ کے اندر کیا مسئلہ ہے میرے بھائی میں نے ایک سید نے آکھیا انہیں کہا سمر صاحب لوگوں نے دسیا کر احمد رضا کو سینے میں لے کے آؤ میں کیا وجہ پیر جی میں نے نکتہ دے اس نے کہا احمد رضا یہ رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے یہ جس دل میں آ جائے اور وہاں پر نہ صحابہ کی گستاخی آنے دیتا ہے نہ اہل بیت کی گستاخی آنے دیتا لگاؤ گے نعرہ اعلیٰ حضرت کا اگر جرت ہے مجھے یہاں پر شاباش دینی ہے علامہ خضر الاسلام نقشبندی کو انہیں آکھیا جے تسی کہندے ہو نا ٹھیک ہے تہاڈی کو مجبوری ہوئے گی لیکن یہ بھی اعلان کرو کہ کوئی بریلوی درباراں تے نہ آوے تے کوئی بریلوی سانو چندہ نہ دے تے جے کاکا تسی دال چھولے نہ کھاؤ تے گل تے کچھ نہ ہوئی اہل سنت سے غداریاں نہ کرو جدوں آیا نا کلا کیو دیسی ساری کہ دیسی کیو آ گیا تے جدوں ڈالٹا آیا نا انہاں کو یار ہے ہو رہا ہے ادو پہچان واسطے سیانے بندیاں کول گئے ہن کرنا کی ہے انہاں نے آکھیا جڑا اصلی ہے او دیسی ہے جڑا نکلی ہے او ڈالٹا ہے میں کیا سنی دو فکرہ اہل سنت میں آ گئی ایک ادب والی عشق والی اور ایک گستاخی والی کو دیوبندی کہہ دیا گیا عشق والوں کو بریلوی کہہ دیا گیا اور یہی ہمارا اختلاف ہے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور آج جان چھڑا کے بھجن دی لوڑ نہیں کسی کو تکلیف ہو تو اپنی تکلیف کا علاج کرا ہم جانتے ہیں سٹیج پہ ہم نے کیا بیان کرنا ہے آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے گدی نشینوں پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا منہ توڑ جواب پہلے ہم سے کچھ لوگ جھگڑتے تھے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی جھگڑتا تھا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی جھگڑتا تھا امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی جھگڑتا تھا عالمیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ناظرین کرام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کنز العلماء ہیں اور اہل سنت کی ننگی تلوار ہیں جو کہ دشمن کے پیٹوں میں گھونپ دیتے ہیں آج وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے گولڈا شریف کے گدی نشینوں کے جناب پیٹوں کے اندر جب چھری گھونپی تو اس وقت جناب جو ہے نا گولڈا شریف کو سخت تکلیف ہوئی گولڈا شریف کے گدی نشین اس وقت چیخ کر چلا کر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ان کو جناب سر عام دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے اندر ہے جرات آپ کے اندر ہے طاقت آپ کے اندر ہے انرجی تو آؤ جناب مقابلہ کرو میرے سے مبالغہ کرو اور مناظرہ کرو میں الحمدللہ افضلیت صدیق اکبر پر جناب مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اس کلپ کو سنیں گے تو آپ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر آپ جناب گولڈا شریف سے تعلق رکھتے ہیں گولڈا شریف کی گدی نشینوں سے جناب جو ہے نا آپ محبت کرتے ہیں تو یہ کلپ دیکھ کر جانا ہے ایسے نہیں جانا کیونکہ افضلیت صدیق اکبر اور صدیق اکبر کا لفظ کن کے لیے بولا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے یا جناب حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ناظرین وہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی چند الفاظ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے جو لوگ جھگڑتے تھے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی جھگڑتا تھا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی جھگڑتا تھا امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی جھگڑتا تھا عالمیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لیکن کہتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہ آج گدی نشینوں آج گدیوں پر بیٹھے ہوئے کئی لوگ آج ہمیں لفظ صدیق اکبر سے ہم پہ جھگڑا کر رہے ہیں لفظ صدیق اکبر سے ہم پہ جھگڑ رہے ہیں جس لفظ پہ اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی صدیق اکبر ہیں اس کے مقابلے میں امت کے کسی فرد کا مذہب ہے ہی نہیں ایک قول نہیں صحابہ میں سے ایک قول نہیں تابعین میں سے ایک قول بھی نہیں ہے 14 صدیوں سے ہاں روافظ ہم سے جھگڑتے تھے وہ روایت لے کر جو آج روافظ کی جگہ ہمارے پیش کر رہے ہیں اسے ہمارے لوگوں نے اس وقت کہا تھا یہ تو ثبوت تک نہیں پہنچتی یہ تو باطل ہے یہ تو موضوع ہے ان بڑوں کے پچھلوں نے جنہیں نے ساری امت سیدنا صدیق اکبر کو سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر کہہ کے گزاری تو حق تو ہم سے پہلے پچھلوں کا تھا کہ وہ پہرا دیتے اس دین پر جو بڑوں کا دین تھا اور وہ کوئی اس روایت سے بے خبر نہیں تھے مدر بات کہنے کا ہے کہ جناب جو گولڈا شریف کے پیر مہر علی شاہ کہہ کے گئے ہیں
اور वहां उनकी बातों पर भी यकीन कर लेते। उनकी जनाब कितनी बड़े बयानात हैं। उन्होंने जनाब सिद्दीक अकबर बोला है तो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए वीडियो दिखाने वाला हूं। जनाब कांजुल उलमा डॉक्टर अशरफ हासिफ जलाली साहब ने जो इस वक्त रेट लगाई है, जो गोलड़ा शरीफ आस्थान आला गोलड़ा शरीफ की गद्दी नशीन, जिन्होंने जनाब जो है ना एक शेर पढ़ा था, वो शेर जनाब क्या था, वो शेर आप सब भी जनाब जो है ना सुनेंगे तो आप सबको जनाब पता चल जाएगा। उन्होंने शेर पढ़ा था, ए अली फरूक आजम तू लकब है आपका, ए वसीय मुस्तफा सिद्दीक अकबर कौन है। यहाँ पर हजरत अली को सिद्दीक अकबर कह रहे हैं। बात झगड़ा इन बात पर है, क्या हजरत अली को सिद्दीक अकबर कह सकते हैं या नहीं कह सकते। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली कंजुल उलमा और जनाब सुन्नियों का एक बहुत बड़ा खंजर, सुन्नियों का तीर, सुन्नियों के लिए तलवार, बड़ी दुश्मनों के लिए नंगी तलवार, और सुन्नियों को बहुत बड़ा जनाब जो है ना बम्पर शेर आ रहा है मैदान में। वीडियो देखें। पहले हमसे कुछ लोग झगड़ते थे खिलाफत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में। कोई झगड़ता था अफजलियत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, कोई झगड़ता था इमामत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, कोई झगड़ता था आलमियत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। आज गद्दियों पे बैठे हुए कई लोग आज हमें लफ्ज़ सिद्दीक अकबर से हम पे झगड़ रहे हैं, जिस लफ्ज़ पे इजमा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं। इसके मुकाबले में उम्मत के किसी फर्क का मजहब है ही नहीं। एक कौल नहीं सहाबा में से, एक कौल नहीं ताबीन में से, एक कौल नहीं 14 सदियों में से। हाँ, रवाफिज हमसे झगड़ते थे, वो रिवायत लेकर जो आज रवाफिज की जगह हमारे पेश कर रहे हैं, जिसे हमारे लोगों ने उस वक्त कहा कि ये तो पाया सबूत तक नहीं पहुंचती, ये तो बातिल है, ये तो मौजू है। आज उन बड़ों के पिछलों ने, जिन्होंने सारी उम्र सैयदना अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहकर गुजारी, हक तो हमसे पहले पिछलों का था कि वो पहरा देते। उस दीन पर जो बड़ों का दीन था, वो कोई इस रवायत से बेखबर नहीं थे, वो इसका जवाब देते रहे। लेकिन पिछलों ने तहफ़्फ़ुज़ तो क्या करना था, वो खुद उनकी बोली बोलने लगे। मैं कहता हूं अगर तुमसे पहरा नहीं दिया जा सकता था तो कम अज कम चुप तो रहते। हम पहरा देने के लिए तैयार हैं और आखिरी साल तक इंशाल्लाह पहरा देंगे और बातिल ताकतों को अपनी एड़ी के नीचे रो देंगे। मगर ऐसे ज्यादा नशीनों तुम तो उनकी बोली ना बोलो। क्या वो दीन जो पीर बेर अली शाह साहब का था, जिसमें एक एक किताब में वो 36 मरतबा यार गात को सिद्दीक अकबर लिखते रहे, उनको इस बातिल रवायत का कोई पता नहीं था। सोचो मसलन ये सदी आज तक कितने जलसे हुए यौम सिद्दीक अकबर, कितने जुलूस हुए, कितने इजलास हुए, कितनी किताबें लिखी गई, जिसमें साथ और लफ्ज़ ही कोई नहीं, सिर्फ शान सिद्दीक अकबर, जलसा सिद्दीक अकबर, मकाम सिद्दीक अकबर। फिर इस पर नंबर छाया गया कि रिसालों के सैयदना सिद्दीक अकबर नंबर, नज़में लिखी गई, तकरीरें की गई। तो आज ये चाहते हैं धांधली करके उम्मत के सारे की पे पानी फेरो कि तुम जो कुछ करते रहे वो बात तो सिरे से वो बंदे का नाम ही नहीं था, तुम किसी और के नाम की महफिलें करते हैं। इतनी बड़ी भी धांधली हो सकती है। लकब बड़ी खास चीज है। लुग़वी तौर पर किसी पर इतलाक हो जाना वो और चीज है। खुली दावत है उनको, जो उम्मत में एक बंदे का भी मजहब नहीं था, हालांकि वो पहले हदीस को जानते, जो इतनी मतरूक अल अमर रवायत है, उसे हदीस कहना भी बड़ा वईद है। आज वो उठा के रवाफिज की बोली बोलना शुरू कर दी है। रवाफिज पहले ये काम करते थे, लिखा है उनकी किताबों में, ये रवायत पेश करते थे। और हमारी वो किताबें जिनमें सिर्फ जखीरा इकट्ठा होता है कि रवायत है कौन सी, आगे हुक्म उसके अलग लगाया जाता है, यानी सही का हुक्म सही, ज़ईफ का ज़ईफ। उन किताबों को इकट्ठा करके कि जिनमें मुतलकन रवायत जमा की जाती हैं, यानी सुन्नियों की फलां किताब में भी है, फलां किताब में भी है। अगर होती तो कोई एक बंदा तो अमल करता। सहाबा में से खुद मौला अली, खुद इमाम हसन, खुद इमाम हुसैन, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, खुद इमाम जाफर सादिक, खुद इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, उनमें से एक भी नहीं है जिन्होंने कहा हमारे अब्बा जी का नाम सिद्दीक अकबर है। जब लक़ब उनका होता तो इमाम हुसैन तो अपने अब्बा जी को सिद्दीक अकबर कहते, इमाम हसन तो कहते कि मैं सिद्दीक अकबर का बेटा हूं। उम्मत में इस लफ्ज का माना अबू बकर सिद्दीक के सिवा है ही कोई नहीं। इतनी धांधली और हमारे जीते हुए। हमें पहले टारगेट किया गया था कि चौकीदार को हटा के हम धांधली करें, मगर रब का फैसला है मैं फिर भी जिंदा हूं। जेलों से निकल के और ऑपरेशन थिएटरों से निकल के और सारे मुकदमात से निकल के और फिर भी ऐलान हक कर रहा हूं। और हम पर कोई मौकूफ नहीं है, हम नहीं होंगे, दीगर को झंडा उठा के खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अव्वल तो वो रिवायत उसको असलाफ ने बातिल कहा, मौजू कहा, यानी मन गलत। मुश्किल से किसी ने ज़ईफ माना तो फिर उन्होंने कहा इसका माना ये नहीं वो है, यानी अपने वक्त का, ना कि मुतलकन उम्मत में। तो ये पहली मर्तबा दावा किया गया निजामुद्दीन की तरफ से, जो दुनिया में सुन्नी किसी ने नहीं किया। हाँ, रवाफिज ने किया है, तो फिर ये रवाफिज के पास चले जाएं, अहले सुन्नत को तो खराब ना करें। किसी बड़े से बड़ी हस्ती के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो दीन बदले। समझ रहे हो ना? इत्तेफाक है इससे। आज तो क्या मैं सैयद हूं, लिहाजा मैं 14 सदियां बदलूंगा। हम अदब सैयद का करते हैं, मगर जो दीन बिगाड़े हम उसको रोकते हैं। अगरचे हम सैयदों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के भी गुलाम हैं। हमारी क्या हैसियत है? हम उनके नालैन और जूते उठाने वाले हैं। मगर करबला का सबक है कि दीन कोई बिगाड़े तो ये ना देखो कौन है, ये देखो दीन क्या है। ये ना देखो कि कोई साहबजादा है किसी सहाबी का, ये देखो दीन क्या है। जब ऊपर यहां सबक है तो नीचे ये करबलाई सबक है, ये हुसैनी सबक है।
जिसको हम सब ने निभाना है। दोस्तों वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें दोस्तों, अब डॉक्टर साहब की जो बातें हैं आपने सुनी। अगर आप डॉक्टर साहब की इन बड़े बड़े दलाल के साथ भी नहीं समझते ना, फिर वही बात है, कांच चिट्टा है। कांच चिट्टा है जानते हैं ना, यानी हम मानते भी नहीं है। जितनी उनको हदीसें पेश करें, जितने कुरान के दलाल पेश करें, जितनी जनाब जो है ना रिवायतें पेश करें, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम बस अपनी अकल पर आ गए। आज वही हो रहा है कि जनाब डॉक्टर अशरफ जलाली साहब जितने उलमा किराम है उनको समझा रहे हैं, भाई आप किस तरफ जा रहे हो, और वापस की तरफ जा रहे हो, खवारिज की तरफ जा रहे हो, अशियों की तरफ जा रहे हो। जनाब हमारा अकीदा है, बल्कि अहले सुन्नत का अकीदा क़यामत तक चलता रहेगा कि सिद्दीक़ अकबर की जात हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, लेकिन वो जनाब जो है ना बार बार यही कह रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये सिफात है। तो दोस्तों अब जनाब डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने मुकम्मल तौर पर जवाब दिया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इस वक्त जनाब जो है ना आस्ताने अल्लाह गोरला शरीफ के गद्दी नशीनों का साथ दे रहे हैं, और भी जनाब अब उलमा किराम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, सुन्नी दो हिस्सों में बट गए हैं। आपस का तनाजा है, आपस का झगड़ा है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जनाब जो है ना एक दूसरे को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है मेरे दलाइल पक्के हैं, वो कहता है मेरे दलाइल पक्के हैं। देखो नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान अहले सुन्नत का हो रहा है, नुकसान जनाब हम सब का हो रहा है, नुकसान अवाम अहले सुन्नत का हो रहा है। वो बेचारे क्या करें यार, किन की सुने जनाब, लफ्ज कोई बड़ा भी नहीं है। देखो अब छोटी सी बात है, छोटी सी बात पर इतनी बड़ा झगड़ा, वो सिर्फ क्या है, अना है, सिर्फ क्या है जनाब अपने आप को कोई जनाब मानने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर अशरफ जलाली साहब इस वक्त हक पर हैं, सच पर हैं, इल्म के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डॉक्टर अशरफ जलाली साहब का पहला नंबर है। और इल्मियत के एतबार से अगर पहुंचेंगे ना तो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को सल्यूट पेश करता हूं। लेकिन जनाब देखे ना कि हर पीर का बेटा भी पीर नहीं हो सकता। इसी तरीके से नाज़रीन जनाब जो है ना अगर हर इल्म वाले का बेटा भी इल्म वाला नहीं हो सकता जब तक वो पढ़े ना। इसी तरीके से जिसके पास इल्म नहीं है तो वो पहले इन चीजों को छेड़े भी ना। ये अशआर लिखना, अशआर पढ़ने है तो आला हजरत के पढ़ें। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेली कसम खुदा की जब लिखते थे ना, एक मरतबा कानों में रस घोल देते थे, उनका कलाम पढ़ें। ये आजकल के जनाब जो है ना वो कलाम लिखते हैं, पता भी नहीं होता कि हम क्या लिख रहे हैं। कभी किसकी शान में गुस्ताखी कर दी, कभी किसकी शान में गुस्ताखी करी, कभी किसी का नंबर जनाब क्या था तो उसको क्या दे दिया, किसी को अफजल करा दिया, किसी को क्या कर, मतलब जो है ना जिस चीज का पता नहीं है तो वहां पे जाएं भी ना और आप पर फतवे भी ना लगे। दोस्तों बस यही मैं आज करने के लिए आया हूं और डॉक्टर साहब की ये वीडियो भी दिखाने के लिए आया हूं। उम्मीद है काफी है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, हमारे साथ रहना है। अपने मेजबान मोहम्मद जन्नत को आज कोई बड़ी अपडेट कर दीजिए इजाजत। जिनकी रही तो फिर मिलेंगे। अपने मेजबान मोहम्मद जन्नत दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।